Hello students, hope you all are fine. So dear students, today we will do the worksheet based on the basic concepts of geometry. So this is chapter 8 and worksheet 1. We have done all the basic concepts of geometry in our previous videos, that is part 1 and part 2 of chapter 8, and today we will do the part 3 of chapter 8. But before starting the worksheet 1, we just take a quick recap of the basic concepts. Okay, so first of all there was the concept of intersecting lines. Okay, so what are intersecting lines? Two lines, when two lines intersect each other at same point, they are known as intersecting line. Okay, here in this figure we have two lines, that is R and S, and both are intersecting at the same point, so R and S are intersecting line. Okay, now the next concept was the parallel line. So what are parallel lines? The lines which do not meet or do not cut each other anywhere in the plane, that are called parallel line. So here again we have two lines, that is P and Q, and P, Q are not intersecting or meeting each other at a point, so these lines are called parallel line. Okay, so next is concurrent line. So what are concurrent line? The lines three or more than three. So when we are talking about intersecting lines, so we just taking two lines. Okay, in intersecting line there are two lines intersecting each other, but in concurrent line there are more than two lines. Okay, so if we have three or more than three lines which are cutting each other at same point, they are known as concurrent lines. Okay, so here we have three lines, line L, M and N, and all are intersecting, all are cutting each other at same point, so line L, M, N are concurrent line. Now the next was some points concept. So point of intersection, so where two lines cutting each other, okay, where two lines intersecting each other, that is called point of intersection. So line L and M, here line L and M are cutting each other at point A, so point A is the point of intersection. Okay, if you have a question, what is the point of intersection of line L and M, so what will be the point of intersection? Where two lines are cutting. So point A is the point of intersection. So next is collinear points. Again you have done it. Collinear points क्या होते हैं? When three or more than three points lie in the same line, lie on the same line, or lie in the same direction, they are known as collinear point. So here point A, B and C lie on the same line, so these points are known as collinear points. One more example, P, Q and R are the points which are lying on the same line, so P, Q and R are collinear points. Okay, and next is point of concurrence. So what is point of concurrence? Where three or more than three points meet. So here in this figure we have three lines which are meeting at point or cutting at point, cutting each other at point P. So point P is known as point of concurrence. Clear? So this was the basic concepts which we have done in our previous videos. If you have not watched that videos, then firstly watch that videos, then you will be able to do the worksheet. So let me proceed further. Worksheet 1. What is the question number 1? Mark a point in your notebook and draw a line passing through it. Okay, you have to do here practically. Mark a point in your notebook. आपने अपनी नोटबुक में कोई भी एक पॉइंट मार्क करना है कहीं भी, एंड ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू इट. और इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ करनी है विच विल बी पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. लेट वी डू. हेयर आई हैड मार्क a point A here,
अब मुझे यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है विच विल बी पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। ओके, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, बट व्हाट इज़ द कंडीशन? पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट से पास होके जानी चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल वी विल ड्रॉ द लाइन। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। ओके, हाउ मैनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट? तो अब आपको बताना है कि क्या आप कोई और लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं विच विल पास थ्रू दीज पॉइंट्स। तो लेट वी ट्राई। अब मैं अगर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, यस, so it means we can draw many more lines passing through this single point। अभी भी हम बहुत सारी लाइंस इस ड्रॉ कर सकती हैं विच विल बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाउ मैनी लाइंस कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट? सो वी कैन ड्रॉ unlimited line, therefore we can draw unlimited lines passing through this point। ओके, तो ये कंसेप्ट हम पहले सीख चुके हैं when we have done the properties of points। When there is a one point in the plane, we can draw infinite line passing through that point। Okay, so next question is mark any 2 points in your notebook। अब क्या है, आपको 2 points मार्क करने हैं। mark any 2 points in your notebook and draw a line passing through both the points। और इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है कि वो दोनों पॉइंट से पास होकर जाए। ओके, सो लेट वी डू। यहाँ तक हम करते हैं। मैंने एक पॉइंट मार्क किया यहाँ ए और यहाँ पर बी। ओके, नाउ लेट वी ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन विच पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, बोथ दीज 2 पॉइंट्स। तो अब मुझे इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो। ओके, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है एंड नाउ ही इज सेइंग दैट हाउ मैनी सच लाइंस यू ड्रॉ पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। अब हम और कितनी और लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट से पास होके जाए। तो लेट वी ट्राई। अब अगर मैं इस तरह से करती हूँ तभी 2 पॉइंट से पास हो रही है। अब मैं थोड़ा सा भी इसको टिल्ट कर रही हूँ स्केल को, तो वो पॉइंट से पास नहीं हो रही है। तो कैन यू ड्रॉ? नो, we cannot draw any more line which will pass these 2 points। Okay, now the next question number 3 is in the book, that is classify the following pairs of lines as parallel or intersecting line। तो अभी हमने उसको डिवाइस भी किया है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं और पैरेलल लाइंस कौन सी हैं। पैरेलल लाइंस विच डू नॉट मीट ईच अदर और डू नॉट कट ईच अदर, एंड इंटरसेक्टिंग लाइन 2 लाइंस व्हेन कट ईच अदर। सो फर्स्ट ए पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ पेयर इज दिस? तो यहाँ पर लाइन क्यू एंड आर intersecting each other, so these lines are called intersecting line। तो आपको ये intersecting line पेयर लिखना है आपको, intersecting lines। नेक्स्ट लाइन L and M आर नॉट intersecting, ये intersecting कर भी नहीं है, और अगर हम इनको आगे एक्सटेंड करते हैं तब भी ये एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। सो दीज आर पैरेलल लाइन्स। ओके, now S and T are parallel lines, again M and T are cutting each other, so these are intersecting lines। P and Q are parallel lines, not intersecting। here in example 5, अब ये ना तो ये एक दूसरे को कट कर रही हैं और ना ही
ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये कट नहीं कर रही हैं तो क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं? पैरेलल भी नहीं है। तो फिर व्हाट टाइप ऑफ पेयर इज दिस? ये हमने एक फैक्ट किया था कि इफ़ वी हैव टू लाइंस इन अ प्लेन, ईदर दे आर इंटरसेक्टिंग और दे आर पैरेलल। तो अब ये क्या है? these are intersecting lines because when we extend this line B, अगर हम इसको extend करते हैं तो it will cut line A because it is lines and line can be extended from either end, किसी भी end से हम उसको extend कर सकते हैं. So it is the pair of intersecting line. Clear? Next is question number 4th, fill-ups. An orange has a dash surface. तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सरफेस की बात की थी. तो सरफेसेस क्या होते हैं? सरफेस इज द आउटर पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो ऑरेंज को अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज का जो आउटर आपको पार्ट दिखेगा वो कैसा होगा, किस तरह का सरफेस होगा? तो आप बता सकते हैं वी हैव टू टाइप्स ऑफ सरफेस, वन इज़ कर्व्ड एंड वन इज़ प्लेन. तो फ्लैट, दैट इज़ फ्लैट. तो वो फ्लैट तो नहीं होता है, दैट इज़ कर्व्ड. सो ऑरेंज हैज़ कर्व्ड सरफेस. नाउ 100 रुपी नोट हैज़, तो 100 रुपी नोट आप सबने देखा है, उसका जो सरफेस है वो कैसा सरफेस होगा? दैट इज़ फ्लैट सरफेस. ओके. नेक्स्ट, dash lines can pass through one given point in a plane. Dash means how many lines can pass through one given point in a plane? That is unlimited, many, infinite. आप कुछ भी लिख सकते हैं, unlimited. Next, 3 or more points in a plane which lie on the same line. 3 or more than 3 points which lie on the same line are called collinear points. ये सभी आपको क्लियर होगा अब तो. Lines in a plane which do not meet anywhere, which do not meet any lines, line की बात नहीं की जा रही है, lines की बात की जा रही है. तो it should be more than one. So lines in a plane which do not meet anywhere are called dashed lines, that are parallel lines. Okay. Now the next is two lines which cut each other at a point. तो here two lines are cutting. तो जब two lines cut करती हैं एक point पर, they are called intersecting lines. सब ये बेसिक टर्म्स हैं. अगर आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तो यू कैन नॉट डू द वर्कशीट. ओके. तो फर्स्ट you have to understand these concepts. Now the fifth question. So let me do the fifth question. In fifth question there is a figure given. I had made this figure here so that you can clearly see it and clearly understand it. So in this figure you have to answer some questions by looking at this figure. Okay. So फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस. अब आपको इस फिगर में बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं और बहुत सारी लाइंस दिख रही हैं. तो फर्स्ट वी हैव टू सी द फिगर थॉरली. अब इसको ध्यान से देखिए आप, कौन सी यहाँ पर लाइंस हैं एंड कौन से यहाँ पर पॉइंट्स हैं. तो फर्स्ट वी विल लुक द लाइंस एंड द पॉइंट्स. तो हेयर वी हैव लाइन L, M, N, T एंड R एंड पॉइंट्स A, B, C, D, E, F एंड G. तो जब हमें पॉइंट्स के बारे में पूछा जाएगा तो हम कैपिटल लेटर्स को देखेंगे, और जब हमें लाइंस के बारे में पूछा जाएगा तो हम स्मॉल लेटर्स को देखेंगे. ओके. सो फर्स्ट A पार्ट इज ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस. तो यहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस के पेयर बताने हैं. तो हमने बात की थी टू लाइंस की, अपनी जब डेफिनेशंस की थी. तो हेयर वी हैव 3 लाइंस. तो अगर आपके पास प्लेन में 3 लाइंस एक ही पॉइंट पर कट करती हैं तो वो तो कंकरेंट लाइन हो जाती हैं. तो व्हेन वी हैव 3 लाइंस इन द प्लेन विच डू नॉट कट ईच अदर, वो एक दूसरे को कट तो नहीं करती हैं बट वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, बिल्कुल सामने हैं, सेम डायरेक्शन में.
तो अगर हमारे पास यहाँ लाइंस हैं एल एम एन और पी, ये लाइंस हैं, तो हाउ मैनी पेयर्स नेम द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर तो एल के जो ऑपोजिट है दैट इज एम, सो एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एम, पैरेलल का हमने सिंबल किया था। नाउ एन इज ऑल्सो ऑपोजिट टू एल एंड नॉट कटिंग, सो एल इज पैरेलल टू एन ऑल्सो। अगेन पी इज ऑल्सो ऑपोजिट, पी इसके सामने है, तो पी इज ऑल्सो पैरेलल टू एल। ओके, अब हमने एल के पैरेलल, एल के ऑपोजिट जो थी वो सब उसके पैरेलल हैं। ओके, एल के पैरेलल एम भी है, एल के पैरेलल एन भी है और एल के पैरेलल पी भी है। नाउ वी विल टेक द लाइन एम, विच लाइन्स आर पैरेलल टू एम। तो एम के ऑपोजिट कौन से हैं, एम के ऑपोजिट एन भी है और पी भी है। एल इज ऑल्सो ऑपोजिट टू एम, बट वी हैव टेकन एम और एल को हम ले चुके हैं, तो एम के पैरेलल हम कौन कौन सी लेंगे, एम पैरेलल टू एन एंड एम पैरेलल टू पी ऑल्सो। ओके, नाउ वी विल टेक पॉइंट एन। अब एन के पैरेलल कौन सी हैं, एन के ऑपोजिट हैं, जो एन के ऑपोजिट पी भी है, एम भी है और एल भी है, बट एम और एल जो हैं वो पहले से ही हम उसको ले चुके हैं। एन के पैरेलल एम हम ले चुके हैं और एन के पैरेलल एल को भी ले चुके हैं, तो इसलिए हमें जो पीछे वाली लाइंस हैं उनको नहीं देखना है, जो उसके नेक्स्ट आगे राइट साइड में लाइंस हैं उसको देखेंगे। तो एन के पैरेलल कौन सी है, एन पैरेलल टू पी। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास प्लेन में टू लाइंस हैं, अब यहाँ पर अगर हमारे पास सिर्फ टू लाइंस हैं एल और एम, ठीक है, एल और एम है, तो आपको पेयर बताना है, सिंपली आप लिख देंगे एल पैरेलल टू एम। बट इफ़ वी हैव मोर देन टू लाइंस और वो सब एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तब हम उसको कैसे लिखेंगे। तो आपने क्या लिखना है, पहले फर्स्ट लाइन को लेंगे जो उसके ऑपोजिट लाई कर रही है और पैरेलल है, वो तो आपको दिख जाएंगी। अगर ये एल पैरेलल टू एम है तो एल पैरेलल टू एन कब होगी, जब एल और एन कि जो बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। तो ज़रूरी नहीं है एल में भी स्लांटिंग, वो स्लांटिंग हो सकती है, तो एन अगर स्लांटिंग लाइन में जा रही है तो पैरेलल नहीं है, बट अगर वो स्ट्रेट लाइंस हैं सारी तो वो पैरेलल ही होंगी। तो हाउ विल यू राइट द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन। तो एल को लेना है, उसके राइट साइड में जो भी लेटर्स आ रही हैं, जो भी लाइंस आ रही हैं, ऑल आर पैरेलल टू एल। तो एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एन, एल पैरेलल टू पी। Next we will take m, m parallel to n, m parallel to p. Next n parallel to p. So these all are the pairs of parallel line. So अब हम अपनी फिगर के साथ चलते हैं। यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट को समझा है। तो हमारी फिगर में हमारे पास थ्री लाइंस हैं, एल एम और एन, और सभी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। नाउ यू आर एबल टू राइट द पैरेलल लाइंस। अब एल एम एन और ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, सो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर एल पैरेलल टू एम, फर्स्ट पेयर। सेकंड इज एल पैरेलल टू एन ऑल्सो, एल पैरेलल टू एन, एंड नेक्स्ट एल के पैरेलल एम भी ले ली, एल के पैरेलल एन भी ले ली। अब आपने नेक्स्ट लेटर लेना है, दैट इज एम। अब एम के राइट साइड पर एक लाइन है और वो उसके पैरेलल है, सो एम पैरेलल टू एन। ओके, अब एन को लेते हैं तो एन के राइट साइड पे कोई लाइन नहीं है, सो एन के साथ अब कोई भी पैरेलल नहीं है, जो पैरेलल थी वो पहले आ चुकी हैं। सो दीज आर द थ्री पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट इज द लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई। तो हियर द टर्म इज पॉइंट ऑफ intersection. Now you know about the term point of intersection. Point of intersection means that point where two lines intersecting each other. तो आपने अब इस फिगर में देखना है कि यहाँ पर कौन सी टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। द लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई, और वो वाली लाइन जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई है, आपको उनके नेम लिखने हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई किसका है,
तो go to the point E here in the figure, that this is point E. ओके, तो ये पॉइंट E है. तो E से अब कौन कौन सी E पर कौन कौन सी लाइंस मीट कर रही हैं. तो E से हमारे पास यहाँ पर एक लाइन जा रही है R, और E से एक पॉइंट जा रही है लाइन जा रही है N. सो R एंड N आर the lines whose point of intersection is E. So what is the answer? R and N. R, N. Okay. Next, one set of 4 collinear points. Now the next term is collinear points. और collinear points जो होते हैं वो 3 और more than 3 points lying on the same line. पर यहाँ पर आपको one set बताना है, 3 collinear points का नहीं, 4 collinear points का. तो ऐसे 4 points जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं. तो let we take the lines. अब L लाइन को देखिए, L पर तो 2 points लाई कर रहे हैं, G और A. ठीक है. इसी तरह M पर F और B लाई कर रहे हैं, N पर E और C हैं. और अगर आप R को देखते हैं, लाइन R, G, F, E, D, all points are lying on line R. So one set of 4 collinear points is G, F, E and D. Also अगर आप T को देखते हैं, again A, B, C, D. Again 4 points lying on the same line. So these points are also set of 4 collinear points. So we can write any one of these two, A, B, C, D, और दूसरा कौन सा हो सकता है, G, F, E और D. G, F, E and D. जब आप सेट लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट्स में लिखिए. ओके, पेयर या सेट कुछ भी लिखना है आपको. तो नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चंस हैं, एनी 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो अब आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के 4 पेयर्स लिखने हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे पेयर्स हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइन के पेयर्स हैं, जहाँ पर 2 लाइंस कट कर रही हैं. तो T एंड R, फर्स्ट इज T एंड R. अब R लाइन को N भी कट कर रही है, सो N एंड R. M भी कट कर रही है, तो M एंड R. L एंड R. सो लेट वी राइट इट, T एंड R. आपको 4 सेट्स लिखने हैं. Line N is also intersecting line R, so N and R. Line M is also intersecting line R, so M and R. Line L is also intersecting line R, so L and R. ये 4 तो हो गए. Now we have many more pairs of intersecting lines, that is T के साथ जो बन रहे हैं, तो T को इंटरसेक्ट कर रही है N, सो वी कैन राइट इट एज T एंड N. T को इंटरसेक्ट कर रही है M, सो इट इज़ T एंड M. T को इंटरसेक्ट कर रही है L, सो इट इज़ T एंड L. तो हमें 4 लिखने थे, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिए हैं. तो नेक्स्ट E पार्ट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन M एंड T. पहले लाइन M एंड T को देखिए. M और T लाइन कौन सी हैं? इट इज़ लाइन M एंड इट इज़ लाइन T. अब M और T किस पॉइंट पर मिल रही हैं? दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो यहाँ पॉइंट ये M है और ये T है. तो M और T दोनों किस पॉइंट पर मीट कर रही हैं? पॉइंट B. पॉइंट B. Okay. The next question is the point of intersection of lines R and T. तो अब R और T को देखिए. R and T, these are 2 lines. इनका point of intersection ये कहाँ पर मीट कर रही हैं? तो R और T दोनों किस पॉइंट पर मीट कर रही हैं? D पॉइंट पर. So point D is the point of intersection of line R and T.
ओके। सो हमने अभी इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो होंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, सो थैंक यू।